ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಷ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಹರ್ಷ ಅವರೇ. ಹರ್ಷ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 300-400 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜಾವಿದ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಂದೀಪ್, ಸುರೇಶ್, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇದೇನು ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಜಾವೀದ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಜಾವಿದ್, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಯಾಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದು 3ನೇ ವಿಷಯ, 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಏನು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ
ರೈಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ತಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಭೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು DCO ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನದ ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮುದಗಂದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೋ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ರೈಸ್ ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಾವು ಕೇಳ್ರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ MRPs ಇದ್ದಾರೆ, MRPs ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿಂದಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಲ. ಹಾಗಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಶಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಹರ್ಷ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರ್ಷ ಅವರು ತಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. PPT ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಹಿಂದಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದವಕಾಶವನ್ನ ಸರ್ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸೋಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಮಯವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಅಂತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ವರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು 2 ವರ್ಷ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಇವರು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ KSKAC ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲೋ ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಯಾವ LOಗಳನ್ನ ಈ 5 LOಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ LOನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಲಿಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕಲಿಕಾಂಶ आपस में वार्तालाप संवाद करेंगे और लिखेंगे। आपस में वार्तालाप करना या संवाद करना, बच्चों के बीच आप कक्षा में वार्तालाप करते हैं या बाहर की सामाजिक परिस्थितियों में उनका वार्तालाप, दुकान जाते हैं तो वार्तालाप करते हैं, और किसी से बातचीत करते समय जो कुछ भी उनकी याद में आ गई है उन विषयों को चर्चा करने के लिए देखना है। यह देने से पहले यहाँ कुछ परिक्रम के अंतर्गत चित्र के माध्यम से इनको गतिविधि देकर, यहाँ पर सामाजिक जो औपचारिकता के तौर पर ले गए हैं, परंतु ये तो है, ये चित्र आप देख रहे हैं, कोरोना से भयभीत लोग मर रहे हैं और अपनी दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसके तहत बच्चे क्या कह पाएंगे? अभी वार्तालाप के तहत इन चित्रों के द्वारा, इन चित्रों के माध्यम से बच्चे क्या कहने वाले हैं, इसके बारे में विचार करने के लिए अध्यापक की सहायता लेकर वार्तालाप कक्षा में कराने के लिए गतिविधि है। और अभ्यास के अंतर्गत वैक्सीन के चित्र देकर अध्यापक की सहायता से आपस में चर्चा कीजिए। वैक्सीन किसके लिए है, इससे क्या होने वाला लाभ क्या है, इससे अवगत होना अवश्य है, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और गतिविधि 3 के अंतर्गत चित्र दिखाकर बातचीत करना या लिखना। यहाँ पर कुछ चित्र आप कक्षा में और कोई चित्र हो तो प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं। और मेले का चित्र है, मेले के बारे में आप क्या जानते हैं, इससे क्या अवगत हुए हैं, 2-4 वाक्य आप वार्तालाप के द्वारा चर्चा करते हुए समूह में बांटने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये तो गतिविधि है बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए। इन बच्चों में निहित वाक्य रचना के जो भी व्यवस्था है, यानी संरचना है, संरचना के बारे में जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब तक पिछले 5 गतिविधियों के अंतर्गत, यानी 5वें सीखने के प्रतिपल, अधिगम प्रतिपल के अंतर्गत हमने वाक्य रचना सीख चुके हैं, परंतु आप लोगों को इसकी आवश्यकता मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी जो प्रश्न पत्र आएगा 6 से 11 तक के सीखने के प्रतिपल, अधिगम प्रतिपल के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अभी मेले के बारे में वार्तालाप, आम का चित्र देखकर आप आम से क्या फायदा है, आप सेब को या अन्य फल को देखे हैं, आप पसंदीदा फल कौन सा है, कुछ अन्य तरीके से प्रश्न पूछकर वार्तालाप के द्वारा
उनमें निहित वाक्य रचना, वाक्य संरचना को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है संवाद, वार्तालाप करना, बेझिझक से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास बच्चे खुद कर ले। इससे और तितली का चित्र, और आगे है अभ्यास 6.5 में तितली का चित्र दिखाकर उसके बारे में लिखना। तितली आप जानते ही हैं। इसके बाद आपके कौन सा फूल पसंद है, क्यों लिखिए। पसंदीदा फूल, फूल के बारे में गुलाब हो, चंपा हो, चमेली हो, और कौन और सूर्यकांति हो, जो भी छात्र देखे हैं उसके बारे में पसंदीदा, उनके पसंद वाला फूल के बारे में 2-4 वाक्य बोलने का प्रयास कर सकते हैं। ये सब कुछ वार्तालाप पूर्ण करने के लिए हैं। यह वार्तालाप के द्वारा शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए, शब्द भंडार बढ़ाने की प्रक्रिया है। और स्कूल में दोपहर के भोजन के बारे में वार्तालाप कीजिए। यहाँ पर एक ढांचा प्रस्तुत किया है। आगे बैठो, कमला भोजन करेंगे। कमला ठीक है, तुम हाथ धोए। अभी एक संदर्भ दिया गया है, हाथ धोने से क्या फायदा है, हाथ धोए बिना खाएंगे क्या। इससे अवगत होने के लिए रूपा और कमला के बीच वार्तालाप आगे बढ़ती है। इसके बाद हम वार्तालाप को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पढ़कर लिखना, कुछ गीत यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अभिनव गीत, आप पाठ्य पुस्तक से इन अधिगम अभिनव गीत को देख पाएंगे। फूल सदा हंसते रहते हैं, कविता को अभिनव गीत कविता को यहाँ पर ली गई है। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी हैं। सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत इसे गद्य रूप में बोलना, या इसका अर्थ अनुवाद करते अपनी मातृभाषा में लिखना, इसमें निहित तुकांत शब्दों को या विरूक्तियों को पहचानना, इसके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। ये सब कुछ पढ़कर बोलने के लिए है या पढ़कर लिखने के लिए है। इस गतिविधि के अंतर्गत प्रश्न भी आ सकते हैं। और अब हम सीखने के प्रतिफल 7 पे आएंगे। तरह तरह की रचनाओं को पढ़कर संदर्भानुसार चर्चा करेंगे। तरह तरह की रचनाएं, यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों रचनाओं को हमने चयन किया है। पद्य सुनना और चर्चा करना इसका गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। कविता है, नीचे पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माने। कुछ कविताओं की पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। इसे समझकर बच्चे क्या करना है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं। सरल प्रश्नों के उत्तर देना है। माँ से आप क्या क्या सीखते हैं, लिखिए। चाहे तो बच्चा इसके अतिरिक्त कविता में जो निहित है उसी को दोहराने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन की भावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए सो अवसर दिया जाएगा। अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ लिखने का मौका उसे मिल जाएगा। और गतिविधि 2 में गांव और शहर का परिचय देना है। गांव और शहर, बच्चे जानते ही हैं, आप गांव के परिवार में, गांव के वातावरण में ही पले पैदे, और शहर के पले पैदे बच्चों में बहुत अंतर पाए जाते हैं। बच्चे अपने गांव के बारे में जान लेता है और शहर के भी। इसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए कुछ कविता, दो कविता दी गई हैं। गांव को गांव रहने देंगे, शहर नहीं बनाएंगे। गांव को देखने वाले पता लग जाएगा कि गांव कैसे रहना है, रहने से हम संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं। शहर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका असर किस प्रकार पड़ेगा और किस पर पड़ेगा। इससे अवगत होना हमारे इस अभ्यास का उद्देश्य है। इस गतिविधि के अंतर्गत गांव और शहर के अंतर को स्पष्ट करना और अध्यापक से चर्चा करना, और बातचीत करते हुए चर्चा में या वार्तालाप के द्वारा उसे प्रस्तुत कर सकते हैं या लिख सकते हैं, चित्र इकट्ठा कर सकते हैं। यह इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। गतिविधि 3 में और एक कविता है, उड़ी पतंग। इस कविता के अंतर्गत हम जांचने का विषय यह है कि मटक मटक कर, और इसी प्रकार के कुछ शब्द द्विरूक्ति है और प्रास भी है, तुकांत शब्द है। तुकांत शब्द और या द्विरूक्ति शब्दों को पहचान कर लिखना हमारा इसका उद्देश्य है। इस कविता में आए हुए द्विरूक्ति शब्दों को उच्चारण करते हुए लिखिए। यह इस अभ्यास के अंतर्गत हमने मूल्यांकन के तहत लिए हैं। अभ्यास शब्द रचना करना, या नए नए शब्द कविता में आए हुए आसमान है, नाम है,
मकान, नल, रस, पतंग, इस प्रकार बहुत सारे शब्द है। आप अंत वाले शब्द यानी अंत्याक्षरी खेल कहते हैं। आसमान, आसमान शब्दकोश के अंतर्गत जो भी शब्द है वह इस गतिविधि के अंतर्गत आसमान अंतिम वर्ण ना है तो आगे का शब्द ना से निकलना है। इसी प्रकार अन्य शब्दों की रचना करने का प्रयास इस गतिविधि के अंतर्गत, अभ्यास के अंतर्गत रखे गए हैं। और आगे देखेंगे नीचे और एक कविता है। इस कविता को ध्यान से सुनकर भाव समझकर लिखना। भाव पक्ष पर यह कविता है। हर घर में यही नारा है। ये तो बहुत हमें कोरोना के समय में याद आ रही होगी। कोरोना से बहुत लोग पीड़ित थे। इससे याद दिलाने के लिए इस कविता को रखा गया है। फिर से दोहराऊं, हर घर में यही नारा है, कोरोना को हराना है। कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या हो चुका है, उससे अवगत कराना हमारा उद्देश्य था। प्रश्न है, हमें किसे हराना है। सरल प्रश्न उस पर दिए गए हैं। उन प्रश्नों से आप अवगत हो जाएंगे कि कविता में बच्चा क्या क्या सीख पाएगा। रचनाओं को समझकर पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। कुछ अन्य रचनाएं आप 8वीं कक्षा के एक ही है पूरक वाचन, सप्लीमेंट्री रीडिंग में एक रक्षाबंधन का एक पार्ट, छोटा सा गद्यांश दिया गया है। उसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं रचनाओं को समझकर। इसी प्रकार के अन्य रचनाएं, कलिका चित्र की किताब में कुछ सरल कहानियां, नीचे अभी जाएंगे। रचनाओं को समझकर पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। आओ बच्चों, इसमें क्या है, मेरी छाया में आकर खेलो। एक पेड़ अपनी आत्मकथा प्रस्तुत कर रही है, तो इसमें क्या क्या मुख्य विषय है, उन मुख्य विषयों से अवगत कराना हमारा उद्देश्य है। छात्र सीख पाएंगे अपने ही वातावरण में पले पेड़ को देखकर। इसको पेड़ की छाया के नीचे बिठाकर अभ्यास कराएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ कार्रवाई पेड़ से इसका परिचय दिलाना था। और पेड़ में क्या क्या होते हैं, टहनियाँ हैं, तना है, जड़ें हैं, और कौन कौन से तरह के पेड़ हो सकते हैं, बरगद हो, पीपल हो, आम हो, इमली हो, अबसून, अबनुस हो, कटहल हो, देवदार हो। इसके प्रकार बहुत सारे पेड़ है। आप अपने माहौल में यानी कक्षा के पाठशाला के माहौल में जो कुछ भी पेड़ पौधे दिखाई देंगे उसका भी परिचय करा सकते हैं। प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं कि वो बच्चे अपने ही अनुभव के साथ इसका तालमेल करें। आदमी जो कुछ भी वृक्ष के साथ अत्याचार कर रहा है उससे अवगत हो जाएगा। पेड़ की रक्षा हमारे लिए जरूरी है या नहीं, पेड़ों की आवश्यकता के बारे में बच्चा जान ले। और जन्मदिन के शुभ अवसर पर पेड़ लगाने से क्या क्या फायदा है। और नीचे दिए गए शब्द, कुछ शब्द हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये मैं बाद में आपको ये शेयर करता हूँ PDF के माध्यम से। नीचे लिखे शब्दों में सही अक्षर भरिए। यहाँ पर हमने दोहराया है बरगद, इमली, देवदार और कटहल। कुछ शब्द ऊपर गद्यांश में है। गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर शब्द पहचानने के लिए शब्दों को वर्ण के द्वारा वर्णों को वहां पर लिखते हैं तो ये एक सार्थक शब्द मिल जाएगा। उस सार्थक शब्द पेड़ के ही नाम होंगे। इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर दी गई है। अभी हम अगले सीखने के प्रतिपल, अधिगम प्रतिपल पर जाएंगे तो समानार्थक और विलोमार्थक शब्दों को समझेंगे। समानार्थक शब्द के लिए यहाँ पर अकल चली बला टली एक छोटा सा कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कहानी के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं। समानार्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। इस गद्यांश पर जहां पर भी बूढ़ा कबूतर है और पेड़ है, इस प्रकार कबूतर बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों पर आपको गोला लगाना पड़ेगा। बच्चे इससे सर्वनाम शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है, इससे अवगत हो जाएंगे। शब्दों से यानी समानार्थ वाले शब्दों को दोहराने के लिए उनको कहेंगे जंगल, जंगल, इसे कन्नड़ में
और पहचान लेगा। और पीपल कन्नड़ में क्या कहते हैं, पेड़ को, और अलग सा समानार्थक शब्द बताने के लिए कहेंगे। इस प्रकार इनमें निहित समान अर्थ वाले शब्दों को इकट्ठा करने के लिए कहना है। ये एक गतिविधि है सिर्फ समान अर्थ वाले शब्दों को पहचानने के लिए। इसके अलावा और भी आप चाहे तो सर्वनाम भी और संज्ञा के भेदों का भी परिचय करा सकते हैं। समान अर्थ वाले शब्द कुछ शब्द है, स्वतंत्र, राष्ट्र, फूल, नदी। इसमें बेमेल शब्द यानी इनमें समान अर्थ वाले शब्द है या नहीं उसे पहचानना। नमूना है आकाश, तारे, चांद, गगन, बादल। आप देखते होंगे कि यहाँ पर आकाश से मिले हैं तारे, चांद भी, गगन भी, बादल भी। इसमें कौन सा निकलना है? ये समानार्थ वाले शब्द पूरे समानार्थ वाले हैं। आकाश, गगन, तारे, चांद, बादल। परंतु स्वतंत्र, राष्ट्र, फूल, नदी, इसमें कौन सा निकलना है? थोड़ा सा देख लीजिए। और पुष्प, पेड़, आजादी, परतंत्र, झंडा मिला हुआ है, इसे थोड़ा सा ध्यान देकर जो भी वह वर्ग संकेत में आ जाएगा उसे अलग करके लिखना है। स्वतंत्र है, आजादी है, परतंत्र है, झंडा है, राष्ट्र है। देखिए यहाँ मिला हुआ है। आगे क्या लिखना है? एक में आने वाला समान अर्थ वाले शब्द दूसरे में कौन सा आता है? वृक्ष तीसरे में है, पानी है, जंगल है, पेड़ है, पौधा है। देखिए कौन सा निकलना है और कहाँ मिलना है। यहाँ वर्गेतर शब्द भी हम इसे कह सकते हैं। और आगे जाएंगे, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। घर, इसका समानार्थक शब्द किताब, जल, विद्यार्थी, बेटा। इस प्रकार के कुछ सरल शब्द हैं। इसका पर्यायवाची शब्दों को बच्चे अपने आप या शिक्षक की सहायता से लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द वही दोहराए हैं। पर्वत, माँ, गहना, दुनिया, सूरज। आगे जाएंगे, चित्र दिखाकर पर्यायवाची शब्दों को चित्र के माध्यम से। यह एक प्रश्न आया है उसमें प्रश्न पत्रिका में। चित्र दिखाकर, माँ का चित्र है, चित्र के नीचे इसे हम पहले गुरु कहते हैं। यह हमारी पहली गुरु है। प्रश्न है। इसी प्रकार के शायद चित्र और कोई चित्र होंगे और इसके माध्यम से शब्दों को ढूंढना या शब्दों की पहचान हो सकती है प्रश्नों के द्वारा। रंग भरिए समानार्थक शब्द लिखिए। रंग भरने की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, परंतु घर, चित्र दिखाकर घर को ढूंढने के लिए, घर शब्द पहचानने के लिए दे सकते हैं। और सूरज का भी, सूर्य का चित्र देकर या सूर्य का अन्य समानार्थक शब्द ढूंढ कर निकालिए या बेमेल शब्द है, इसको भी दे सकते हैं। और आगे जाएंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द का सही मिलान रूप है। कुछ नमूना प्रस्तुत करके उन विलोम अर्थों को यहाँ पर मिलान करने के लिए दिए हैं। इसी प्रकार की कुछ अन्य गतिविधि आप पाठ्य पुस्तक की सहायता से भी कर सकते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त, देखिए विलोम शब्द से रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। यहाँ पर कुछ खाली जगह दिए हैं। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। इसी प्रकार सत्य की हमेशा डैश पर जीत होती है। सत्य की हमेशा झूठ पर ही विजय ही दूसरा विरुद्धार्थक शब्द वाक्य को पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार की गतिविधि भी आप दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द गोला लगाइए। कुछ शब्द हैं उस पर गोला लगाने के लिए देंगे। अभी सीखने के प्रतिफल 9 पर जाएंगे तो यहाँ पर दिए हुए लेख को पढ़कर वस्तुओं, व्यक्तियों और प्राणियों के नामों को समझेंगे। यहाँ पर छोटा सा कहानी है, मेरा घर। इस कहानी के माध्यम से हमें संज्ञा शब्दों को पहचान लिखने का, यानी संज्ञा शब्दों से परिचित होने का अवसर हम बच्चों को प्रदान करने वाले हैं। बच्चे समझ पाएंगे कि संज्ञा क्या है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर हम उसको ले जा रहे हैं। कविता कहानी के द्वारा, मेरा नाम राहुल है, सरल वाक्य है। मेरा घर बीदर में है। घर क्या है, बीदर क्या है, राहुल
नाम, माता पिता, भाई बहन, घर के सामने नीम का पेड़, रंग गुलाबी रंग, 2 बिल्लियां, देसी गाय, घर के सभी सदस्य, ये सब कुछ वो रोज देखता ही रहता है। इससे संज्ञा शब्द क्या है परिभाषा देते हुए उनको अवगत कराना हमारा उद्देश्य है। इस गतिविधि के अंतर्गत इस कहानी के 2 या 3 पंक्तियों में निहित संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना। कोष्टक में दिए गए, यहाँ पर एक कोष्टक है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, प्राणीवाचक संज्ञा के जो भी भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद में व्यक्तियों के, वस्तुओं के और प्राणियों के नामों को अलग करके लिखने की गतिविधि यहाँ पर दी गई है। बच्चे इससे अवगत हो जाएंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक में से व्यक्ति के नाम कौन कौन से हैं, वस्तुओं के नाम कौन से हैं और प्राणियों के नाम। और देखो, पढ़ो और लिखो। देखो, यहाँ पर एक चित्र है, पेड़ का चित्र, सैनिक का चित्र है, किसान का चित्र है। चित्र देखना है, चित्र देखकर शब्दों को उससे मिलान करना है, लिखना है कि वह चित्र किससे संबंधित है। और आगे गतिविधि 2 में देखेंगे संज्ञा। नमूने के अनुसार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक, प्राणीवाचक, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न पत्र के एक नमूना है, वहां पर कुछ आवरण में दिए गए शब्दों में से वस्तुवाचक, प्राणीवाचक और वस्तुवाचक, व्यक्तिवाचक शब्दों को अलग करने के लिए गतिविधि दी गई है और प्रश्न पत्रिका में उसकी दोहराव हो सकती है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। और बाद में देखेंगे नमूने के अनुसार वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद करके सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों से सार्थक शब्द, सार्थक अक्षरों से सार्थक शब्द। अमर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है जैसे के तैसे उसको मिलाकर शब्द बनाना है। कहानी को पढ़कर उसके नामों की सूची तैयार कीजिए। कहानी में जो भी कहानी है राजू और संजू के बारे में। ये दोनों दोस्त थे, स्कूल जाते थे, बैठकर पढ़ाई करते थे एक साथ। एक दिन स्कूल से घर जाते समय सड़क में सांप दिखाई दिया। संजू राजू को अकेला छोड़कर भाग गया। राजू की मदद के लिए गोपाल दौड़कर आया। गोपाल को देखकर सांप चुपचाप वापस लौट गया। तब राजू को समझ में आया बुरे वक्त में साथ देने वाला सच्चा मित्र होता है। इसमें मूल्य के तहत हमने सच्चा मित्र का परिचय हमने कराए हैं। इसके साथ साथ इस कहानी के अंतर्गत कुछ सरल प्रश्न हो सकते हैं। इस कहानी को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा भी जा सकता है क्योंकि 22 क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पत्रिका के प्रश्न संख्या 22 में अपठित गद्यांश, इस कहानी को अपठित गद्यांश के अंतर्गत लेकर यानी कहानी को पूर्ण करने के लिए दे सकते हैं। कहानी में कुछ शब्दों को अलग करके, बाहर करके उन्हीं शब्दों को आवरण में देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे जाएंगे, नामों की सूची बनाएंगे। यहाँ पर व्यक्तिवाचक भी है और वस्तुवाचक भी है, प्राणीवाचक भी है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके दी। यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद है, व्यक्तिवाचक माने, जातिवाचक माने या समूहवाचक, द्रव्यवाचक हो और भाववाचक। इन पांचों का भी आप परिचय कराना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ण दिए होते हैं व्यक्तिवाचक के अलावा, और जातिवाचक, भाववाचक शब्दों को भी आप नमूने के अंतर्गत यानी आवरण में दिए गए शब्दों को पहचान कर कोष्टक में भरने की भी गतिविधि दे सकते हैं। आज गांव में मेरी दादी जी आ रही है। यहाँ पर कुछ शब्द है संज्ञा शब्द, उन शब्दों को छांट कर बाहर निकलकर आवरण में लिखने के लिए भी यहाँ पर गतिविधि दी गई है। परंतु इसे प्रश्न पत्रिका के हिसाब से हम देखेंगे तो वहाँ आवरण दिए हैं, आवरण में कुछ शब्द हैं, नीचे कोष्टक है, संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक में से व्यक्ति, वस्तु और प्राणी, इसी पर ध्यान दिया है तो हमें इसका ही अभ्यास कराना उचित मैं समझता हूँ। नीचे दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर कुछ गतिविधि प्रश्न पत्रिका में नहीं है, फिर भी हम इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। खाली स्थानों में 2-2 संज्ञा शब्द लिखिए। अपने 2 मित्रों के नाम। इस प्रकार की गतिविधि सिर्फ अभ्यास के तहत हमने लिया है। प्रश्न पत्रिका यानी मूल्यांकन प्रश्न ये नहीं हो जाएंगे।
संज्ञा के प्रकार के अंतर्गत हमने अभी तक चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किस प्रकार परिवर्तन करते हमने देखा है, इस पर भी हम विचार करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी भारत है, भारत जातिवाचक संज्ञा, इसका भाववाचक जातिवाचक संज्ञा रूप देश हो जाएगा। मोहन लड़का, बालक या अध्यापक, शिक्षक या मित्र कोई भी। और बैल तो प्राणीवाचक है। यमुना नदी है, बैल जानवर है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक के रूप में भी पूछा जा सकता है। और दिए गए जातिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखिए। यहाँ कुछ जातिवाचक संज्ञा है, वो से हमारे पड़ोसी डॉक्टर है, रामू की माँ शिक्षिका है। इसमें जातिवाचक संज्ञा कुछ है, उसे बाहर लिखने के लिए यहाँ पर गतिविधि दी गई है। रेखांकित शब्दों में से कौन सा भेद हम पहचान सकते हैं? या कौन सा भेद है? यहाँ पर लड़कों ने जमकर होली खेली, लड़कों ने जमकर होली खेली, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है और व्यक्तिवाचक यहाँ पर कुछ व्यक्तिवाचक के नाम नहीं है। लड़का इसे जातिवाचक कहते हैं। भारतीय सैनिक वीर है, यहाँ पर कुछ शब्द जातिवाचक भी हो सकते हैं, व्यक्तिवाचक कौन सा है इसे पहचान कर लिखना है। या रेखांकित शब्द के जो भी भेद है उसे वहां गोला लगाकर निशान लगा सकता है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं को वाक्य बनाइए। कायरता, मुस्कान, मानवता, वीरता, इससे संबंधित सरल वाक्य। इस प्रकार की गतिविधियां प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम देखे नहीं पाएंगे। कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर खाली जगह में भरिए। ये अपेक्षित है। यहाँ पर आवरण में भला, इसका भाववाचक संज्ञा रूप, आपको शब्दों को भाववाचक संज्ञा रूप में बदलकर खाली जगह में भरने की जो भी कार्रवाई है या गतिविधि अभ्यास है उसे करा सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सरल प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण हैं। इस प्रकार के प्रश्न अब प्रश्न पत्रिका में पूछे नहीं जाएंगे, अभ्यास के लिए सिर्फ दिया गया है। और सीखने के प्रतिफल 10 हिंदी अंक गिनती आप सब जानते ही होंगे कि ये 6वीं कक्षा से गिनती है। अब तक के लिए बच्चे कम से कम 100 तक वह सीख चुके होंगे, इसलिए गिनती की परवाह नहीं है। गिनती के तहत वहाँ प्रश्न पत्रिका में एक ही प्रश्न है, जो भी है 1 से 20 तक है, कम से कम 30 तक बढ़ाएंगे तो, इसलिए आप 1 से 30 तक की गिनती को संख्याओं में और अक्षरों में दोनों का अभ्यास कराएंगे तो परीक्षा के लिए वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। सीखने का प्रतिफल 11 में जाएंगे तो पत्र लेखन के माध्यम से वाक्य रचना के बारे में सीखेंगे या जानेंगे। पत्र लेखन तो 7वीं कक्षा से शुरू हो चुके हैं, अभी हम 8वीं कक्षा में भी देख चुके हैं सुधा के पत्र, उसके प्रारूप। इसलिए आपको क्या करना है, छुट्टी पत्र, कम से कम एक ही पत्र गतिविधि के अंतर्गत हम दिए हैं। तो भी ये पत्र पारिवारिक पत्र के अंतर्गत हम उसका परिचय भी करा सकते हैं, तो इससे बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं। कम से कम अभी तो प्रश्न पत्रिका की दृष्टि से हम देखेंगे तो छुट्टी पत्र अनिवार्य है। छुट्टी पत्र के प्रारूप या ढांचा प्रस्तुत करना है, ढांचे के हिसाब से बच्चों को कहने का अभ्यास करा सकते हैं या लिखने का भी अभ्यास करा सकते हैं। इस नमूना यहाँ पर प्रस्तुत हुई है कि यहाँ पर खाली नमूना ढांचा दिए हैं, ढांचे में बच्चे खुद लिखना है, और एक नमूना है छुट्टी पत्र को सही क्रम से जोड़िए। छुट्टी पत्र प्रेषक कहाँ रखना है और दिनांक कहाँ रखना है, सेवा में किसको हमें या एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस के अंतर्गत कौन कौन से विषय आ जाएंगे, और संबोधन किस प्रकार करना है, अभिवादन किस प्रकार करना है, पत्र का कलेवर कहाँ रहेगा, और पत्र की समाप्ति किस प्रकार होनी है। इन सारी बातों को यहाँ पर बच्चे ध्यान लगाकर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार हम 6 से 11 तक के पूरे अधिगम प्रतिफल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र क्या है,
प्रश्न पत्र का स्वरूप आप जान चुके होंगे कि प्रश्न पत्रिका क्या है। प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने 1 से 20 तक के प्रश्न हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत हम देख सकते हैं। प्रश्न पत्र ये एक नमूना है। इसमें सिर्फ छात्रों की दृष्टि से और अध्यापक की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बच्चों को किस प्रकार तैयार करनी है, इसके लिए एक नमूना है। ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ಆ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಳ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮತ್ತೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೋ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಬರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ 20 प्रश्नಗಳು 1 से 20 तक के लिए दिए गए 4 उत्तरों में से सही विकल्प. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಬಂದೋಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಏನು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು 2 minutes ಆಯ್ತು, 1 minute ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿನ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇವೆ. MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. इसमें पहला है स्वतंत्र का समानार्थक शब्द. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಧಿಗಮ್ ಪ್ರತಿಫಲ್ 8ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಅಂಶಗಳು ಅದು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಆಜಾದಿ, ಪರಾಜಯ, ಅಜೇಯ, ಪರತಂತ್ರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಮೇಲ್ ಶಬ್ದನೂ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ ಪಾಠ में अभ्यास संख्या 6 में हिम्मत, पानी, पेड़, पक्षी, महिला, तबीयत 6 समानार्थ वाले शब्द दिए गए हैं. और हरा घोड़ा पाठ से शब्द और अर्थ का मिलान रूप सही मिलान कीजिए. इसमें कुछ समानार्थ वाले शब्द है. और जीवन धात्री वर्षा शब्द अर्थ को मिलाना, शब्द अर्थ की दृष्टि से मिलान करना. यहाँ पेय, भारी, प्रतीक्षा, भाष्प इस प्रकार के कुछ शब्द है अभ्यास के अंतर्गत निहित है. इनमें से किसी एक शब्द अभी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आ सकते हैं क्योंकि समानार्थ वाले शब्द कलिका चेतरिके में भी है किताब में और हमारे पाठ्य पुस्तक में. कबीर के दोहे में उदाहरण के अनुसार समानार्थ शब्द लिखिए. अग्नि, उत्तर, कनक, खग, गुरु, तारा इस प्रकार के कुछ शब्द है. और इसका अभ्यास आप कक्षा में कराएंगे तो बच्चे और आसानी से अंक प्राप्त करेगा. निम्नलिखितों में से पुल्लिंग शब्द है. पुल्लिंग शब्द रानी, भाई, लड़की, मछली पुल्लिंग शब्द है. कौन सा है? ढूंढ निकालना है. इसी के अंतर्गत कुछ शब्द इस प्रकार के भी हो सकते हैं. नमूना बच्चा है, इसमें अन्य लिंग रूप लड़का, चाचा, मोर, ऊंट, विद्यार्थी. थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि यह सब ईकारांत वाले शब्द है, फिर भी इसमें एक पुल्लिंग शब्द है. इसी प्रकार के और अन्य शब्द बदलाव होके वहां पर प्रस्तुत हो जाएगा. शायद किसी बच्चे समझने में आसान हो. पाठ्य पुस्तक कलिका चेतरिके की किताब जो भी है इसके अलावा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, जनरल भी नहीं हो जाएगा. इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पाठ्य पुस्तक की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए.
और इसके अलावा यहाँ पर अन्य पुल्लिंग शब्द तो कलिका चैतन्य की किताब में नहीं है, चिंता की बात नहीं है। इसलिए आप पाठ्य पुस्तक में जो भी अभ्यास है उस पर थोड़ा ध्यान दें। उदाहरण के अनुसार अन्य लिंग रूप लिखिए, शिक्षक शिक्षिका। नमूने के अनुसार बदलना है, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, सेवक सेविका। इसी प्रकार इन्हीं प्रश्नों को दोहराने का अभ्यास कराइए, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। और जो भी नियम है, नियम को सरलता से स्पष्ट कर दीजिए। या जोड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में बदलते हैं। किस प्रकार? कुत्ता, इसका रूप या जोड़ने से, परसर्ग जोड़ने से कुतिया बन गया। बुड्ढा बुढ़िया हो जाएगा, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्दों का भी आप अभ्यास करा सकते हैं। अन्य लिंग रूप लिखिए। ये सब कुछ आपके किताब में ही है। किताब के अन्य पाठ्य पुस्तक के अनेक पाठों में से हमने छांट कर एक जगह रखा है बस। अन्य लिंग रूप लिखिए, पति, पिता, माँ, महिला, आदमी। ये तो वृक्ष प्रेमी तिम्मका पाठ से हुई है। अन्य लिंग शब्द बादशाह, हरा घोड़ा पाठ से है, बादशाह, राजा, पिता और भाई। और तीसरे प्रश्न पर जाएंगे तो बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप लिखिए। बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप, थोड़ा कंफ्यूज मत होना है। जल्दबाजी में थोड़ा सा शब्दों को पहचानना परखना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए बच्चों को कहना है कि अन्य वचन के रूप किस प्रकार के होते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग में होता है क्या, ओकारांत में रहता है क्या, और आकारांत पुल्लिंग में रहता है क्या, इसे समझाना बहुत जरूरी है। जब भी हम अन्य वचन के तहत लेंगे तो आकारांत पुल्लिंग किस प्रकार बदलता है, किस परिवर्तन, रूप परिवर्तन से हम आसानी से अन्य वचन को पहचान सकते हैं, थोड़ा सा से समझाना जरूरी है। और जो भी शब्द है पेड़, इसका अन्य वचन रूप पेड़ ही है। इन शब्दों का भी बच्चों से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि वह बहुवचन में ही उसका प्रयोग होता है। वस्तु, वस्तुएं, बच्चा, बच्चे, रिपीट हुआ है, बच्चा, बच्चे। देखिए इस प्रकार के कुछ शब्द दोबारा आ सकते हैं। शायद ये एक नमूना है, ढांचा है, ना भी आ सकते हैं। नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप लिखिए, बेटा, बछड़ा, लड़का। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो, परंतु यहाँ पहाड़ है, पहाड़ बहुवचन है, पेड़ भी बहुवचन है, शेर भी और वचन भी। इन शब्दों से भी बच्चों को अवगत कराना जरूरी है। नीचे लिखे शब्दों का अन्य वचन रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द है अन्य वचन के रूप में हमने लिया है। एक, स्त्री, रोटी, व्यवस्था, रात। ये सब कुछ पाठ्य पुस्तक के ही कुछ शब्द है, अभ्यास में निहित कुछ शब्द है। अन्य वचन रूप व्यवस्था, सेवा, पक्षी, गाली, बच्चा, घर। ये सब कुछ अभ्यास में निहित प्रश्न है। इन्हीं शब्दों का अभ्यास कराने से आपको कम से कम पूर्णांक मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द है। इनमें से चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द। ये संज्ञा शब्द हमारे कलिका चैतरिक में भी आ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। कलिका चैतरिक में रचनाओं में निहित संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। वह है, बड़ा है, आसान है प्रश्न, कौवा है, पढ़ना है, पढ़कर समझना होगा। तिम्मका ने पेड़ पौधों की रक्षा की। रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में है। यहाँ पर की क्रिया है, ये तो पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आगे भी प्रश्न पूछेंगे तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से ही आ जाएगा। ये क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या विशेषण, यानी विकारी शब्दों में से एक शब्द आ जाएगा। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, उसमें से एक शब्द इस प्रकार प्रश्न में आ जाएगा। रेखांकित होके उसका व्याकरणिक रूप हमें पहचान कर लिखना पड़ेगा। बच्चों को इससे अवगत कराइए कि समुच्चय बोधक के रूप में भी उपयोग होता है, संबंध कारक के रूप में और क्रिया के रूप में। समुच्चय बोधक में और संबंध कारक में क्या अंतर है उसे स्पष्ट कर दीजिए। ह्रस्व कहाँ पड़ता है और की का प्रयोग, दीर्घ की का प्रयोग यानी क्रिया रूप में और संबंध कारक के रूप में हम कहाँ इसे प्रयुक्त करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास कराइए। मटक मटक कर के
आपने पतंग के एक कविता सबसे पहले कलिका चेतरिक में देखा होगा, उससे संबंधित है ये। मटक मटक के पूंछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंग, पतंग की कविता पर आधारित एक प्रश्न है। प्रयुक्त द्विरुक्ति शब्द है, द्विरुक्त को पहचानना है, बच्चों को आसानी से द्विरुक्ति पहचानना है तो या सामासिक शब्द मटक मटक कर बीच में एक ही लकीर है, उसे क्या कहते हैं? उस लकीर को लगाने से हमें आसानी से द्विरुक्ति शब्दों को पहचान सकते हैं। इसे समझाना बहुत आसान से समझा सकते हैं। आसमान है, पूंछ हिलाती है, उड़ी पतंग है, मटक मटकर। थोड़ा सा ध्यान देकर बच्चे आसानी से, ये कलिका चैतन्य की किताब से ली गई है। आगे भी इसी से पूछ सकते हैं और अन्य कविता भी वहां पर दी गई है, उसका भी थोड़ा ध्यान दें। चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कलिका चैतन्य में नहीं है, ये तो टेक्स्ट बुक से ली गई है। चलना है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, चलाना है, चलवाना है, चलते हैं, इनमें से कौन सा सही है? बच्चे आसानी से समझने की और पहचानने की तरीका आप समझाकर इसको और चुस्त बना सकते हैं। उदाहरण के अनुसार, नमूने के अनुसार, खींचना, खिंचाना। सीखना क्या होगा? पीटना, सीना, पीना। और इसके अलावा और कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, करना, चलना और बनना, उठना। इसके अलावा कुछ भाषा ज्ञान के अंतर्गत परिवर्तन के यानी प्रयोग की दृष्टि से प्रेरणात्मक क्रियाओं को दिए हैं, उसका भी अभ्यास कराइए। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होता है? प्रेरणात्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें किन किन कार्रवाइयों को यानी अभ्यासों को छात्रों से करा सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रेरणात्मक क्रिया किताब की जो भी अभ्यास प्रश्न है उसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। हम प्रश्न संख्या 8 पर जाएंगे। निम्नलिखितों में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य यह स्पष्ट है कि कलिका चैतन्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, पाठ्यपुस्तक से ही ली गई है। मोहन के माँ बीमार है, मोहन का माँ बीमार है, मोहन को माँ बीमार है, मोहन की माँ बीमार है। संबंध कारक के ऊपर प्रश्न है, चाहे इसमें कुछ बदलाव या परिवर्तन हो सकता है। कर्ता कारक हो, करण कारक हो, कर्म कारक हो या अपादान संपादान कारक, उसका भी आप अभ्यास करा सकते हैं। कुछ वाक्य शुद्ध करने के लिए पाठ्यपुस्तक में अभ्यास के अंतर्गत रखे गए हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर का के की ज्यादातर यानी संबंध कारक के ऊपर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, इसलिए उनको आसानी से समझ में आए संबंध कारक क्या होता है। आगे की जो भी वर्ण है यानी शब्द है उसके लिंग के अनुसार का लगाना है या के लगाना है, की लगाना है, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसका ध्यान अवश्य कराइए। और 9वां प्रश्न, वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्ध महिला है। ये तो पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसके अंतर्गत अन्य प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तक चुंबक है धरती हमारी पाठ से इन्होंने हमें धरती के चुंबक शक्ति का परिचय कराया। अकबर किसके, बीरबल किसके दरबारी कवि थे, मंत्री थे। गुब्बी तालुक डैश जिला में है, किस जिला में है। तिमक्का के माता पिता का नाम हो सकता है, तिमक्का के पति का नाम डैश है। तिमक्का के दत्तक पुत्र कौन था, कौन है। इस शुद्ध जल का स्रोत कौन कौन सा है। बीरबल इसके दरबारी मंत्री थे। अकबर के बुद्धिमान या चतुर मंत्री कौन थे। अकबर बीरबल को इसे लाने का आदेश दिया। घोड़े के मालिक की शर्तें कितनी थी। ये सब कुछ प्रश्न, ये देखिए, वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध महिला है, ये नॉलेज प्रश्न है, स्मरण पर आधारित है। स्मरण पर ही अगर प्रश्न आएंगे तो इस प्रकार के स्मरण वाले यानी याद करके लिखने के प्रश्न पर ही पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी और पाठ से कुछ है, यानी संक्रांति को हम किस महीने में मनाते हैं। रमजान, रोजा रखने का दिन कितना है, रोजा का मतलब क्या है। और संतुलित आहार में कौन कौन से आहार लेने से विटामिन डी मिल जाएगा।
ये सब कुछ प्रश्न आसानी से पूछे जाने वाले, स्मरण करके लिखने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। और कैरल्स किसे कहते हैं, विशु कहाँ मनाते हैं, बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाते हैं, विशु कब मनाते हैं, ये सब कुछ आसानी से स्मरण करके बच्चे लिखने वाले जो भी प्रश्न हैं उसको ही दे देंगे। यानी क्रिसमस कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाने वाले त्योहार के नाम लिखिए। इस प्रकार के स्मरण वाले प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष डैश महीने में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है। रमजान डैश का पवित्र त्योहार है। इस प्रकार के ये यहाँ पर सही शब्द ढूंढ कर लिखने के लिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरने के लिए दिए हैं, तो सरल आसानी से प्रश्न भी डायरेक्ट आ सकते हैं। 10वां है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला, वर्तनी के ऊपर ये एक प्रश्न है। थोड़ा बच्चों को रेफ पदेन का अभ्यास जरूर कराइए, क्योंकि वृक्ष, 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 देखिए ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उच्चारण पर उच्चारण के स्थान रेफ और पदेन का अभ्यास कराइए। आगे भी शायद इसी पर आ जाएंगे शायद, यानी रेफ पदेन के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द, इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजनाक्षर को भी ले सकते हैं, उसका भी रूप परिवर्तन साम्यता के दृष्टि से बहुत कम होता है। इसलिए नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध रूप या पाठ्यपुस्तक से ली गई है। उत्तरायण, यहीं से अभ्यास में से कुछ शब्द लेंगे, तो इसका अभ्यास जरूर कराना जरूरी है। शब्दों को शुद्ध कीजिए। समुद्र, समुद्र, कक्षा, देखिए यहाँ पर कक्षा है, संयुक्त व्यंजनाक्षर पंक्षी है, संध्या है, कर्म है, कर्म रेफ वाला शब्द, और मीठी है। 11 है प्रश्न संख्या ई डैश ली, रिक्त स्थान में आने वाला सही वर्ण है। ये तो कलिका के तरीके से लिया गया है। खा यानी शब्द बनाना, शब्द रचना, सरल शब्द रचना करना। बच्चे आसानी से इसको अगर इसे पहचानते हैं तो आसानी से लिख सकता है। इकली, इचली, इयली, इमली, चारों का प्रयोग करेंगे तो वह आसानी से लिख पाता है। इसी प्रकार के कुछ बरगद हो या पीपल हो या देवदारू हो और अन्य कुछ पेड़ों के नाम भी दे सकते हैं। और बीड़ा उठाना, यह एक मुहावरा है। 12वां प्रश्न मुहावरे पर ही एक प्रश्न है। मुहावरा सालु मर्द तिमक, वृक्ष प्रेमी तिमक पाठ से भी मुहावरे है। बीड़ा उठाना इस मुहावरे का अर्थ है, सीधा अर्थ में प्रश्न आ जाएगा। इसी प्रकार के वृक्ष प्रेमी तिमक का पाठ से मुहावरे का अर्थ पसीना बहाना है, हिम्मत ना हारना है, बीड़ा उठाना जिम्मेदारी लेना। बीड़ा उठाना तो आ चुका है। और इसी प्रकार के कुछ प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग पाठ्य पुस्तक में हुआ है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। 13वां है ऊपर का विरुद्धार्थक शब्द। विरुद्धार्थक शब्दों का प्रयोग कलिका चैतरिक में भी हुआ है और पाठ्य पुस्तक में भी, दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। ऊपर का विलोम शब्द है। इस प्रकार के अभ्यास प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से है। विलोम शब्द लिखिए। जन्म, आसान, गरीब, अपना, छोटे। हरा घोड़ा पाठ से लेंगे। दिन, बहुत, हार, बड़ा, आगे। इसी प्रकार हम भारतीय त्योहार पाठ से भी है, हरा घोड़ा पाठ से है। सगुण, धरती, दिन, ऊपर, आखिर, पता। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आसानी से उपसर्ग लगाने से कुछ शब्द विरुद्धार्थक बन जाते हैं। इसके अलावा विपरीत के रूप पर, विपरीतार्थ के रूप में भी शब्द परिवर्तन होकर आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए आसानी से किस प्रकार शब्द को विलोमार्थ में हम बदल सकते हैं, उन्हीं शब्दों का अभ्यास कराइए, क्योंकि उतना तो बच्चों को क्लिष्टतर रूप से प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। ये आसान है प्रश्न, एक बार देख लीजिए। ऊपर का विलोम शब्द, इनमें से आगे भी नहीं होगा, पीछे भी नहीं हो जाएगा,
नीचे हो जाएगा, सामने हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अंतर है, उसको समझने में बच्चे बहुत आसानी से समझने में आपकी मदद ले सकते हैं। और इन्हीं शब्दों का अभ्यास कराइए जो उपसर्ग जोड़ने से बनता है। और ज्यादा कठिन वाले यानी उसका अर्थ ही ना मालूम हो, उन शब्दों का प्रयोग ना करें। यहाँ पर दिन रात है, सुख दुख है, नया पुराना, पवित्र अपवित्र, विश्वास अविश्वास, सूर्योदय सूर्यास्त, धर्म अधर्म। देखिए यहाँ पर आ लगाने से विलोमार्थ बनता है। इस प्रकार के सरल शब्दों का ही आप अभ्यास कराइए, से बच्चे आसानी से पाठ्य पुस्तक की सहायता से प्रश्न पत्र को आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। 14वां है, निम्नलिखितों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक माने क्या है? आप परिभाषा देते हैं, उसका अभ्यास भी कराते हैं। राहुल क्या है, घर क्या है, बचपन क्या है, फूल क्या है, और अपने आप खुद पता लगाएगा कि व्यक्तिवाचक क्या है। और ये तो कलिका तरीके में है, परंतु इस अभ्यास के अंतर्गत यानी कलिका तरीके के अलावा भी छात्र जागरूक रहते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किन किन शब्दों को हम पहचान सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसका भी अभ्यास कराइए। 15वां है, तिम्मक्का ने अब तक 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। वाक्य का कन्नड़ अनुवाद है, ये तो टेक्स्ट बुक से ली गई है, तिम्मक्का वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का पाठ से। सही शाब्दिक अर्थ को पहचानने के लिए यहाँ तो भावार्थ यानी भाव पक्ष पर नहीं रहेगा, वाक्य का जैसा कि तैसा अनुवाद हम देख सकते हैं। सिर्फ पहचानने के लिए यहाँ पर दी गई है, उनका प्रयोग की दृष्टि से भी नहीं है। इसलिए पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कुछ अन्य वाक्यों का अभ्यास कराइए। तिम्मक्का पाठ से है, अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का। बहुत आसानी से यानी सरलता से सरल वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि तैसे अभी देख लीजिए, तिम्मक्का ने, तिम्मक्काಳು अब तक ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300 से 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ भी ಹೆಚ್ಚು अधिक ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ, लगाए हैं। ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅದರ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ। ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾಠದಿಂದ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ತ್ಯೋಹಾರ ಪಾಠದಿಂದ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ ಪಾಠದಿಂದ, ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ ಕವಿತೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಥಾವತ್ ಶಾಬ್ದಿಕ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ। 16वां, चित्र पढ़िए, उचित शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। ये तो दोहराव है। ಚಿತ್ರ ದೇಖರ್, ಚಿತ್ರ ಮಾಕ ಚಿತ್ರ है, ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಹಮಾರಿ ಪಹಲಿ ಗುರು है माँ, माँ ಮಾತಾ, ದೋಸ್ತ್ ಪಿತಾ ಸಹೇಲಿ ಮಾತಾ। ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಇದರ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಸೈನಿಕರ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ। ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಬರಬಹುದು ಈ ಚಿತ್ರ, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು। ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅದನ್ನ ಗುರುತು ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು। हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, वाक्य में प्रयुक्त कारक। कारक पर आसानी से प्रश्न है, का, के, की, संबंध कारक पर ही रहेगा। अगर पूछे जाए तो कर्ता कारक। कर्ता कारक का प्रयोग तो हम ने का प्रयोग 8वीं कक्षा में हमने कहीं पर भी हमने बच्चों को सिखाए नहीं है, और काल के बारे में और कारक के बारे में सरलता से हम संबंध कारक ही लेंगे, क्योंकि ये आसान तरीका है बच्चों को
और अभ्यास की दृष्टि से हम देखेंगे तो तिमक्का पाठ से का, के, को और की का प्रयोग, का, के, को और के पास, इस तरह संबंध कारक के रूप में और कर्म कारक के रूप में जो भी है उसको ही हमने नापा है। इसलिए इस तरह के सरल शब्दों का परिचय अभ्यास के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका ही अभ्यास कराइए। आसानी से वो बच्चे संबंध कारक कौन सा है, कर्ता कारक, कर्म कारक को पहचान सकता है। और 18वां प्रश्न है मकर संक्रांति। ये तो टेक्स्ट बुक से ली गई है। मकर संक्रांति का आचरण महीना है, ये रिपीटेड है। मार्च में मनाते हैं, फरवरी में, दिसंबर में, जनवरी में। बहुत आसान है प्रश्नों के उत्तर पहचानना। इसके अलावा मकर संक्रांति भारतीय त्योहार पाठ से आए हैं, तो भारतीय त्योहार पाठ से और दूसरा प्रश्न भी आ सकता है। जिस प्रकार हमने मकर संक्रांति के अलावा बैसाखी को, बैसाखी पंजाबियों का नए साल का त्योहार मनाते हैं। बैसाखी डैश के नए साल का त्योहार हो सकता है। और इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं कि इस त्योहार में यानी बैसाखी त्योहार के दिन लोग डैश नृत्य करते हैं, यह नृत्य करते हैं, वरना बैसाखी के प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा और गिद्ध। प्रश्न हो सकते हैं विशु कहाँ की, यहाँ का प्रमुख त्योहार है। और क्रिसमस इस महीने में मनाते हैं, इस दिनांक को मनाते हैं। और रमजान रोजा का मतलब क्या है, भारतीय त्योहार से इस प्रकार के कुछ। रमजान कौन मनाते हैं, रोजा का मतलब क्या है, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये नॉलेज पर है, उसी पार्ट से आएगा, हमें अपेक्षा रखते हैं कि उसी पार्ट से होंगे। चावल, आलू, गेहूं, राई। 19वां है इनमें से बेमेल शब्द। बेमेल शब्द माने आलू, चावल, गेहूं, राई। ये तो टेक्स्ट बुक से ली गई है। टेक्स्ट बुक यानी शायद ये कबीर के दोहे पाठ से हमने चयन किया है। कबीर के दोहे पाठ से नहीं, संतुलित आहार में होंगे। संतुलित आहार या नीचे रसगुल्ला, मैसूर पाक, सेब, गुलाब जामुन, लड्डू, इस प्रकार के कुछ शब्द है। उनमें से वर्गेतर शब्द है सेब। उसी प्रकार अभ्यास में थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्गेतर शब्द चावल, आलू, गेहूं, मक्का, बाजरा, जीरा, दाल। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है, सरल आसान तरीके से बच्चे इसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। इसके अलावा भी अलग सरल शब्द भी दे सकते हैं, यानी मूली, टमाटर, गोभी, गाजर, कुर्ता है। यहाँ पर देखिए मूली, टमाटर, लहसुन, अदरक, हींग, तेल, सौंठ। थोड़ा सा बच्चों को आसानी से समझाइए कि इनका मतलब क्या होता है। रोटी, चावल, पानी, छाछ, शरबत, इसमें क्या फर्क है। उसे बताने से बच्चे आसान तरीके से ढूंढ निकल कर लिखेंगे। ये एक नमूना है, चावल, आलू, गेहूं, राई। इसी के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में से कोई एक आ जाएगा। इसके अलावा और पाठ्य पुस्तक में हो या कलिका तरीके में हो, कहीं पर भी इस तरह के बेमेल शब्द नहीं है। निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य में आने वाला वाक्यांश। थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि अपूर्ण वाक्य बहुत सारे हैं पाठ्य पुस्तक में भी और कलिका तरीके में भी। शीला नाटक, ये तो टेक्स्ट बुक से है। शीला नाटक पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़े रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ रही है एक वचन स्त्रीलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार सही शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। अभिनव गीत पाठ से हैं, कुरुक्ष प्रेमी तिरुमक्का पाठ से हैं और हरा घोड़ा पाठ से भी है। जोड़कर लिखिए भी है, चुंबक है धरती हमारी। और वाक्यों को सही क्रम से लिखिए, उसी में से आ जाएगा। और वाक्य रचना पाठ पढ़ रहा हूँ, शीला नाटक खेल रही है। देखिए अभ्यास संख्या 4 इसमें से लिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
अभ्यास प्रश्न से ही एक प्रश्न लिया है तो अभ्यास प्रश्न से ही और एक प्रश्न आएगा। और कोष्टक में दिए गए शब्दों को चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ये संतुलित आहार पाठ से हैं। और प्रश्न संख्या 20 तक हम पहुंच चुके हैं। ये 20 शब्द एमसीक्यू है। एमसीक्यू के तहत इतना प्रश्न आ जाएंगे, इन्हीं को आप एक बार चेक कर लीजिए। और कोई गुंजाइश है तो यानी तकलीफ है तो मैं दोबारा आपको जो भी त्रुटियां इसमें हैं यानी गलतियां हैं उस पर ध्यान नहीं दीजिए। ये तो जल्दबाजी में हमने ऐसे ही तैसे ला कर रखे हैं प्रश्न पत्रिका से। परंतु क्या है, प्रश्नों की चयन और प्रश्न कहाँ से आते हैं, आने वाले हैं, किस प्रकार अभ्यास करने हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और 20 के बाद 21 प्रश्न, यहाँ तक हमने 1-1 अंक वाले 20 प्रश्न ले चुके हैं। बाद में 2 अंक वाले 5 ಪ್ರಶ್ನೆ होंगे। 2 ಅಂಕದ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1 ಅಂಕದ ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು। ಆ 20ಕ್ಕೂ ಸಹ 20 ಅಂಕಗಳು 21ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಅಂಕದ್ದು, ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಅಂಕದ್ದು, 1 ಪ್ರಶ್ನೆ 4 अंकದ್ದಿರುತ್ತೆ। 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ आवरण में दिए गए शब्दों से कहानी पूर्ण कीजिए। 2 अंक वाले प्रश्न हैं। आवरण में कुछ शब्द है, सड़क, भाग, स्कूल, दोस्त, साथ। राजू और संजू, ये तो पहले हमने कलिका चतुर्की में देख चुके हैं। राजू और संजू दोनों दोस्त थे, एक दिन एक साथ स्कूल जाते थे। इस प्रकार के सरल कुछ शब्द यानी छूट गए हैं, आवरण में है, उनमें से तालमेल लगाना। बस जोड़ने के लिए बच्चों को शब्दों की पहचान होनी चाहिए, शब्दों से अवगत कराए कि कौन सा शब्द कहाँ आनी चाहिए। ये तो कलिका चतुर्की से है, तो दोबारा शायद कलिका चतुर्की से ही शायद प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 अंक वाले प्रश्न, वर्षा किसानों के लिए, ये तो टेक्स्ट बुक से है, वर्षा नहीं तो जीवन नहीं। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। टेक्स्ट बुक से और इसी तरह के प्रश्न हो सकते हैं। यानी अनुच्छेद है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश पढ़कर उत्तर लिखिए। यह एक रक्षाबंधन का और एक पूरक वचन में हमने लिया है। पाठ्य पुस्तक से अगर लेते हैं तो रक्षाबंधन पर भी आ सकता है। रक्षाबंधन त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है, रक्षाबंधन साल भर कौन प्रतीक्षा करते रहते हैं, रक्षाबंधन त्योहार कैसे संपन्न होता है। इस तरह की यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न हैं। एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, तो सरल आसानी सा प्रश्न है। यानी पीने के पानी का मूल साधन क्या है, पानी अत्यंत उपयोगी है कैसे। देखिए ये एक मूल साधन क्या है, ये तो नॉलेज पर है, अंडरस्टैंडिंग पर। दूसरा प्रश्न है उपयोगी है कैसे। देखिए एक प्रश्न नॉलेज पर रहेगा, स्मरण पर रहेगा, तो और दूसरा प्रश्न अंडरस्टैंडिंग में, समझने में रहेगा। इसी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं 2 प्रश्न। और गिनती पर आ जाएंगे 1 से 50 तक। हमने पहले ही कह चुके हैं कि 50 तक आप अभ्यास कर चुके होंगे, इतने तो करते हैं। इसमें से छूट गए या अंक वाले, समान अंक वाले अक्षरों को देकर संख्या में लिखने के लिए दे सकते हैं। और अक्षर संख्या अंग्रेजी के देकर अक्षर और संख्या दोनों में लिखने के लिए भी दे सकते हैं। गिनती 1 से 50 तक अभ्यास कर लीजिए और 2 अंक उससे प्राप्त हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर जाएंगे। निम्नलिखित पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये तो अभिनव गीत कविता से, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। देखिए अभिनव गीत कविता से इन पंक्तियों को ली गई है, तो 2 अंक के लिए है। इसी प्रकार के और कुछ पंक्तियां ले सकते हैं। अभिनव गीत कहानी कविता से आप उसका अभ्यास करा सकते हैं। देखिए नीचे इन पंक्तियां, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, ये तो रिपीटेड है। जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। अभिनव गीत कविता से कुछ सरल पंक्तियां ले सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ कलिका चतुर्की से नहीं आएगा, क्योंकि यह तो टेक्स्ट बुक से ली गई है, तो टेक्स्ट बुक से ही आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से, इन पंक्तियों में से तुकांत शब्द वाले प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ पर भावार्थ के लिए दिए हैं, भाव अपने शब्दों में लिखिए, लिखने के लिए है।
इसमें तुकांत शब्द नहीं आ जाएंगे। और 25वां प्रश्न है, तिमक्का के जीवन से संबंधित वाक्यों को पढ़िए और घटनानुक्रम से लिखिए। तिमक्का से संबंधित है, उनके जीवन से संबंधित घटना, ये तो अभ्यास प्रश्न में भी है। तिमक्का के जीवन के घटना कालानुक्रम से लिखिए, क्रमानुसार से लिखिए। कुछ शब्दों में परिवर्तन है। तिमक्का दंपति ने रोज दूसरों के खेत में काम करते थे, ये जैसे कि तैसे यहाँ पर लिए नहीं है। थोड़ा सा पाठ पर ध्यान दीजिए। पाठ के कुछ वाक्यों को यहाँ पर इन्होंने चयन किया है। मतलब ये हुआ कि पाठ के अभ्यास के अंतर्गत जो भी वाक्य है उसको डायरेक्ट तैसा ही वैसा नहीं देंगे, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के यानी छांट कर उन्होंने दिया है तो और पाठ्य पुस्तक से ही लेंगे। और इसके लिए चुंबक है धरती हमारी एक घटना को भी यहाँ क्रमानुसार लिखने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा घटना के अनुक्रम में लिखने का जो भी पाठ है वो तिमक्का हरा घोड़ा भी है, हरा घोड़ा पाठ से भी आ सकता है। ये दोनों अकबर और बीरबल शाही बाग में घूमते थे। अकबर ने बीरबल को 7 दिन के अंदर हरा घोड़ा लाने के लिए कहा और बाद में मालिक की 2 शर्तें उन्होंने प्रस्तुत की। वह बीरबल अपने ही मुंह की खाना सुननी पड़ी। इस प्रकार की कुछ अन्य घटनानुक्रम से लिखने का वाक्य दे सकते हैं। अभ्यास कराइए। चुंबक है धरती हमारी, और जीवनदात्री वर्षा में नहीं हो जाएगा, भारतीय त्योहार में भी नहीं, संतुलित आहार में भी नहीं, कबीर के दोहे में भी। ये 3 पाठ इस प्रकार के हैं, घटना को सूचित करता है। और घटना के अनुसार क्रमानुसार लिखने का भी अभ्यास इन 3 पाठों में से कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है, मकर संक्रांति त्योहार के आचरण के बारे में लिखिए। मकर संक्रांति त्योहार भारतीय त्योहार के अंतर्गत टेक्स्ट बुक पर ही आ जाएगा। इसके अलावा भी प्रश्न हो सकते हैं। मकर संक्रांति त्योहार आचरण के बारे में लिखिए तो बैसाखी कहाँ मनाते हैं, बैसाखी के आचरण के बारे में लिखिए। या विशु, विशु केरल का एक त्योहार है, विशु के बारे में, विशु केरल के लोग किस प्रकार मनाते हैं। और क्रिसमस ईसाई लोग किस प्रकार मनाते हैं, क्रिसमस के आचरण के बारे में लिखिए। या रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है, रमजान किस प्रकार मनाया जाता है, रमजान के आचरण के बारे में लिखिए। इस प्रकार मकर संक्रांति भारतीय त्योहार पाठ से है तो दूसरा प्रश्न भी उसी पाठ से आ जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास करा के बच्चों को पूर्ण अंक प्राप्त, यानी 3 अंक वाले प्रश्न हैं 26 और 27, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि विवरणात्मक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक के सीधा पाठ्य पुस्तक से है। निम्नलिखित शब्दों को व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, प्राणीवाचक में, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पर व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा के तहत ली गई थी 1 अंक वाले प्रश्न के लिए। फिर दोबारा व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और प्राणीवाचक के रूप में छांट कर लिखने के लिए 3 अंक वाले सरल प्रश्न है। मेज, अमर, संजना, पुस्तक, डिब्बा, सोहेल, अश्विनी, हाथी, गाय, यानी यहाँ पर व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है और प्राणीवाचक भी है। इसे चांट कर नीचे दिए गया या कोष्टक में लिखने का अभ्यास है। आप अभी से कराएंगे तो आसान हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 4 अंक वाले प्रश्न, 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। आप सब देखे होंगे कि 10वीं कक्षा में इस प्रकार का अभ्यास, यानी छुट्टी पत्र के लिए निर्धारित है तो यहाँ पर भी छुट्टी पत्र के लिए इन्होंने निर्धारित की गई है 2 दिन की, चाहे आप 3 दिन हो या 4 दिन हो, एक ही दिन क्यों ना हो, छुट्टी पत्र यह अनिवार्य है। प्रधान अध्यापक के नाम पर या कक्षा अध्यापक के नाम पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अभ्यास कराइए। कलिका चित्र तरीके से इसे ली गई है तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी छुट्टी पत्र पाठ से हमने इसका अभ्यास कराए हैं। इतना पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से और कलिका चित्र के, ये दोनों को मिलाकर अब तक हमने वो प्रश्न पत्र का प्रारूप का एक ढांचा किस प्रकार हो सकती है और आगे जो भी प्रश्न आ जाएंगे किस पर पूछे जाते हैं, इसका हम सविवर विचार कर चुके हैं। अगर कोई दुविधा हो तो आप दोबारा प्रश्न के द्वारा पूछकर उसका हल निकाल सकते हैं।
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೂಕ್ತ ನನಗನ್ಸಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಷಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ಏನ್ ಮುಗೀತಾ? ಎಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ದೇವರಾಜ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಅದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕಲಿಕಾ ಹಾ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಗ MDRS ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್, ಈಗ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಲಿಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾ ಸರ್, ಹಾ ಸರ್. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು, ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇನ್ನೂರು ಒಂದು ಕಾಪಿನೂ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟೋಟಲಿ ಈ FA1 FA2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್, ವ್ಯಾಕರಣ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬುಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್? ಈಗ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ರಿಂದ 50 ಈಗಾಗಲೇ ಗಿಂತಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಇದು 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಕರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೌದ್ರಾ? ಇದು 6th ಮತ್ತು 7th ಎಂಡ್ ವರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದೌದು. ಇವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್, ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಯಾರು, ಪ್ರಾಣಿವಾಚಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ,
ಸೂರಜ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಂದ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಪೇಡ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಸೈನಿಕ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಸರ್ ನಡವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಲಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಒಂದು PDF ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ PDF ಕಳಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಮೇಡಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ತ್ಯೋಹಾರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓದಿಸೋದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಚುಂಬಕಾಯಿ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜೀವನದಾತ್ರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ. रमजान त्योहार के बारे में या मकर संक्रांति किस प्रकार आचरण करते हैं ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ನಯಿತು ಜೀವನ್ ನಿಹಿ ಎರಡೇ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷ ನಯಿತು ಜೀವನ್ ನಿಹಿಲಿ ವರ್ಷ नहीं होता है तो इसका असर क्या होता है. ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ का मतलब क्या है. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೋ ಮಗುನೇ ತನ್ನ ಸ್ವ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರ ಸರ್, ಅಥವಾ 1 ರಿಂದ 50 ಅಥವಾ 100ವರೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರ ಸರ್? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100ವರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. 100 ತನಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಸರ್. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 100ವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 50 ಆದ್ರೂ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಈಗ ಅಪ್ ಸೆಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಇಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಾವು ಅಭಿನವ್ ಗೀತಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಗೀತಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಠ 10ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಸರ್? ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್. ಅಭಿನವ್ ಗೀತಿಂದ ತಗೊಂಡು ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆವರೆಗೆ ಮೇಡಮ್. ಅಭಿನವ ಗೀತೆ ಸರ್. ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆವರೆಗೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರಾ ಸರ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಅಂತ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ತಾವು? ಸರ್, ಮಾರ್ಚ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ಬಿ ಸರ್. 9 ಇತ್ತು, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ 12ರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. 12ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಇದು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಅದು? ಒಂದೇ ಸರ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 6 ದಿನ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತೆ 6 ದಿನ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. हेलो सर, नमस्ते सर. हेलो सर, नमस्ते सर. सर, कुल प्रश्न पत्र मार्क्स क्या है? 40 है सर, लेकिन
प्रश्न जो टोटल 28 मार्क्स है सर। 50 मार्क्स है सर। प्रश्न संख्या 28 है, कुल मिला के कुल अंक 40 है सर। 40 है ना सर? कुल अंक हाँ सर। 50 का है ना सर एग्जाम लेने का? 10 ओरल है ना 50 सर? अंकों के लिए 10 अंक आप ओरल में जो भी 10 मार्क्स देंगे वो ऐड होके 50 हो जाएगा सर। हम अंक क्या है पहले ही लेना है एग्जाम से पहले, या एग्जाम जिस दिन चलते है उसी टाइम समय काट कर दोपहर में लेना है? सर अभी इंस्ट्रक्शन आ जाएगा थ्रू बोर्ड से, उसके हिसाब से हम आगे करना है सर। ठीक है सर। और एक है सर, हम प्रश्न पत्र को देखेंगे तो ज्यादातर क्या है उसमें सर सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। सर प्रश्न पत्र को देखेंगे तो हाँ मॉडल क्वेश्चन पेपर में सर अपने कलिका से कम और अधिक व्याकरण को लिया है, पाठ्य पुस्तक से लिया गया है सर। इसमें हम देखते हैं से कम पाठ्य पुस्तक से अधिक के प्रश्न के सर ऐसा नहीं है सर, यह क्या है अभी जो भी प्रश्न है 6th 7th से भी लेना है और ये 8th में भी, और ये 6 7 का 20% रहेगा तो 60% 8 में रहेगा। और एक सर और एक विषय क्या है आपके चेक करेंगे तो गतिविधियां 6 से 11 तक होगा, उसमें से प्रश्न आकर आपसे बताया था। हाँ सर। सर उसमें से आएगा सर आप वॉइस क्लियर नहीं है सर आपका। सर जो कलिका 6 तारीख में पाठ्य संख्या 6 से 11 तक है ना सर? हाँ सर। उसी में से आएगा पाठ्यक्रम जो बोर्ड एग्जाम होगा सर। हाँ सर उसी में से आ जाएगा, उसमें से ही सर। जो व्याकरण अंश है जो हमारे पाठ्यक्रम जो है ना हमारे सर पाठ्य पुस्तक, उसी में क्या व्याकरण जैसे कि लिंग है, तुकांत वाले शब्द है सर, उसी में से कलिका 6 तारीख में कम है सर, उसमें पाठ्य पुस्तक में से अधिक है। मेरा कहना ये है सर यह जो भी गतिविधि कलिका 6 तारीख में है उसी गतिविधि के अंतर्गत जो भी अभ्यास प्रश्न आएंगे उसमें से कलिका 6 तारीख में है उसमें ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाकी के जो भी है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से ही प्रश्न आ जाएंगे सर। उसके अभ्यास से इसी में से आएंगे सर? हाँ सर डायरेक्ट रहेगा। हाँ यहाँ पर ये गुंजाइश नहीं है कि और यहाँ से वहां मिलाना वहां से यहाँ मिलाना, ऐसा प्रक्रिया नहीं है सर। हाँ नहीं मेरा वही है सर, मैं कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर कि ज्यादातर प्रश्न पाठ्य पुस्तक से आएंगे या कलिका 6 तारीख से आएंगे या कलिका 6 तारीख से एक से ही आएंगे? हाँ सर 50-50 सर, ज्यादातर भी नहीं है कम भी नहीं है। टेक्स्ट बुक से लेंगे तो 6 7 से भी 20% क्वेश्चन आ जाना है जरूरी है, इसलिए आसान जो प्रश्न है वह 6 7 से ली गई है, उसमें से लेते हैं सर। हाँ हाँ सर ठीक है धन्यवाद सर। ओके धन्यवाद सर। ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್। ನಾವು ಏಕಲವ್ಯ ಕೊಂಚೂರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್। ಹೇಳಿ ಸರ್। ಸರ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಬಹುದಾ ಸರ್ ನಾವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಂಠಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ। ಹಾ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬಿಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ಅದು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬುಕ್ಕಿನಿಂದನೇ ವಿಶೇಷ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ PPT ಅಥವಾ PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। PPT ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಹಾ ಸರ್। ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್। ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು। ಹಾ ಮೇಡಮ್। ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದು ಓರಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। ನೀವು 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ। 10 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು? ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮೌಖಿಕ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನೀವು ಓರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಆ ತರ? ಮೇಡಮ್ ಈ ರೂಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಅಂಕದ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಅಂಕದ್ದು ರೂಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 0 1 2
ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೇನು ದಾಖಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ದಾಖಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅದೇ ದಾಖಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ಒಂದು ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ, ಭಾಗಶಃ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. 2 ಉತ್ತರ 2 ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸರಿ. ನೀವು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದೇ ಸರ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಗುಣದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಕೇಳಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಗಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ರಿಂದ 11 ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್? ಇವಾಗ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ, ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ, ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇದು 5ರವರೆಗೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. 6 ರಿಂದ 11ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲವುಗಳೇನಿದೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಇದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಠಪಾಠದ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಕಂಠಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಕಂಠಪಾಠದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಂಠಪಾಠದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಅಥವಾ SA2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವರಿಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ SA2 ನಡೆಸಬೇಕಾ ಸರ್? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ SA2, ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಶಾಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನೀವು STS ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, FK3 FK4 ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. SA2 ಇದನ್ನೇ SA2 ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಅಜೇರ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು ಮುಧೋಳ ಅಂತ. ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಸರ್ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇದು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಹಾ ಸರ್.
ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಿಕಾ ಚಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೀವು PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತಿದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 50-50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಕಲಿಸಬಹುದು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ಸರ್ ಇದು ಪಾಠ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈಗ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಂಜ್ಞಾ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಸಿರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗ ಅದನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಯಾರೂಪನೂ ಒಂದಿದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ರಜಪತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಕಿರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ, ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರದು ಟೀಚರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ಇನ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. DSCRT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದಾವೆ. ಅಚ್ಚಾ ಸರ್, ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. DSCRT ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪುಸ್ತಕವೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ CSAS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ CSAS ಬೇರೆ, ಅದು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಹರ್ಷ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.